Hello students, again I am here with the new lecture of the same chapter, that is crop production and management. So in the last lecture I have explained you about the different steps of agriculture. So two steps I have explained, that what is agriculture, and first is plowing and leveling. Okay, so start from the next, that is next is मैन्योरिंग. ये सबसे पहले खेत को क्या करते हैं, जोता जाता है, दैट इज प्लॉइंग. वी प्लॉ इट एंड आफ्टर दैट लेवलिंग, फिर उसकी लेवलिंग की जाती है. एंड नेक्स्ट स्टेप इज मैन्योरिंग, मींस टू ऐड द मैन्योर. Farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. The process known as manuring. Farmers manure को, seeds of manure जिसे हिंदी में खाद कहते हैं, and it is prepared from the organic materials. Organic means the vegetable peels or the fruits, the vegetables. When these are collected and it come in the contact of the air, sunlight, microorganism, it's converted into the manure, which is rich in nutrients. So manure is added into the, तो manure को add किया जाता है into the field to enrich them with the nutrients, जिससे उनमें जो nutrients की कमी हो गई है वो nutrients की requirement fulfill हो जाए. So the adding of manure into the field is known as manuring. किसी field में manure को add करने के process को manuring कहते हैं. Manure are organic substances. Organic, I have told you that the different substances like the peels of vegetable, the vegetables, dried fruits, or the dried leaves which is fallen from the trees, when they come in the contact of the microorganism with the sunlight, with the air and water, dried leaves, vegetable, fruits, ये सब जब मिट्टी में गिरते हैं और वो सनलाइट, एयर, माइक्रोऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं. समटाइम इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द कंपोस्ट पिट. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द कंपोस्ट पिट इन द प्रीवियस क्लास. कंपोस्ट पिट जिसमें एक गड्ढे में ये सारी चीजें डालते हैं और कुछ दिनों के बाद विद द माइक्रोबियल एक्शन, विद द एक्शन ऑफ सनलाइट, विद द एक्शन ऑफ वाटर, ये सब कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, खाद में. ओके, so the manure, these are organic substances, means जो organic substances से बनते हैं, obtained from the decomposition of plant and animal waste. When they decomposed means when they are converted into the manure. When they are decomposed and converted into the simpler form with the help of the microorganism is known as manure. जब ये सारी चीजें organic substances, microorganism, sunlight, air, water के contact में आने पे simpler form में decompose हो जाते हैं, तो ऐसे ही वेस्ट, निकले हुए प्लांट और एनिमल वेस्ट, जिससे ये डिकम्पोज होके क्या बनते हैं, मैन्योर. और इसी मैन्योर को जब मिट्टी में ऐड किया जाता है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज मैन्योरिंग. और मैन्योरिंग की क्या जरूरत होती है, बिकॉज इट इनरिच द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स में, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है उन्हें फुलफिल करते हैं. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर? Advantages, it increase the number of friendly microbes. Why? Because when all things are present into the soil, microbes जो friendly microbes होते हैं like the earthworms, centripedes, millipedes, और microbes जो कि अंदर तक deeply penetrate होते हैं, जब nutrient होता है मिट्टी में जाते हैं और soil की fertility को increase करते हैं. तो जब manure present होता है तो उनके लिए nutrients available होता है, and then these microbes are easily entered into the, or they live into the soil. Next is, it improves the texture of soil by adding organic matter. Texture means बनावट. Okay, it increases the texture by the humus. When the humus is present, नमी होती है because of the microbes, because of the manure, so the organisms easily survive and nutrients also present into the soil. It increases soil fertility. ये क्या करते हैं, soil की fertility को, उर्वरकता को बढ़ाते हैं. Water holding capacity and aeration. Aeration means, अभी फर्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन किया कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो वो डीपली पेनिट्रेट होते हैं, मतलब मिट्टी में अंदर तक जाते हैं, और जब अंदर तक जाते हैं तो जगह बनती है और एयर इजीली एंटर करता है, जिसके कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. इट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और एरेशन करते हैं. मींस जब फ्रेंडली माइक्रोब्स अंदर तक जाते हैं तो वो बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं,
तो मिट्टी में जगह बन जाती है, जिससे पानी भी अंदर तक जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और सॉइल में एयर कंटेंट भी इंक्रीज होते हैं। इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को बचाते हैं। सॉइल इरोजन मींस जब मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन जब सॉइल में मैन्योर डालते हैं तो वो मिट्टी को बांधे रखते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और सॉइल एक जगह से इरोड होकर के दूसरी जगह नहीं जाते। इट इज चीप, बहुत सस्ते होते हैं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनते हैं, सो दे आर सो चीप, बहुत सस्ते होते हैं और आसानी से बन जाते हैं। बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, क्या डिसएडवांटेज है, क्या नुकसान है? They have less amount of nutrients as compared to fertilizer. Fertilizer के comparison में fertilizer जो कि खाद होते हैं, but they are prepared from the inorganic substance and they are nutrient specific. वो inorganic substances से बने होते हैं और न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। मान लीजिए मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर भी मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज मैन्योर आर बल्की एंड नॉट इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मैन्योर थोड़े बल्की होते हैं, भारी होते हैं। बल्क मीन्स फैला हुआ, भारी, बल्की होते हैं तो इन्हें इजीली आसानी से स्टोर नहीं किया जा सकता और एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स। So what are fertilizers? These are commercially manufactured inorganic salt containing one or more essential plant nutrients like NPK. What is NPK? That is nitrogen, phosphorus and potassium, which are used to increase soil fertility. ये commercial use के लिए, मतलब बड़े बृहद स्तर पे use के लिए बनाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, सी दीज आर इन द सॉल्ट फॉर्म। ऐसा नहीं खाद की तरह बहुत बल्की है, बहुत भारी है कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में प्रॉब्लम हो, और इनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज what are the advantages of fertilizer? That they are nutrient specific. I have told you that especially if you want that in the soil there is a nitrogen is not present or there is a deficiency of potassium or phosphorus, so we only use the nutrient specific fertilizer. ये nutrient specific होते हैं but manures are not nutrient specific. So they are nutrient specific and required in small amounts. इन्हें खाद की तरह ज्यादा मात्रा में डालने की जरूरत नहीं होती है, थोड़े अमाउंट में ही काम हो जाता है। They are water soluble and absorbed by the plant easily. ये पानी में मिक्स हो जाते हैं और प्लांट में, मिट्टी में आसानी से एब्जॉर्ब भी होते हैं। They are easy to store and transport. Why? Because they are in the powdered form. They are in the form of the salt. So that's why ये salt की form में होते हैं. So that's why it is easy to store. इन्हें store करके रखना और एक जगह से दूसरी जगह तक transport करना भी बहुत easy होता है. So these are some advantages of fertilizer. Next is some disadvantage. कुछ disadvantage भी होते हैं, like manure. They have some disadvantages. Fertilizers have also some disadvantages. What they are? Fertilizers can change the soil structure by killing the soil microbes. Fertilizers can change the soil structure. ये soil के structure को change करने के साथ साथ क्या करते हैं, जब change हो जाता है तो जो microbes हैं कभी कभी वो भी मर जाते हैं, and sometimes when they are increased in the amount they are also harmful for the soil. Fertilizers can change the chemical composition of soil. अगर ज्यादा मात्रा में ऐड हो गए तो soil के जो composition है उसको भी change कर देते हैं. Accumulation of fertilizers in water bodies cause eutrophication. And if extra amount of fertilizer, accumulation means इकट्ठा होना. If the extra amount of fertilizers are accumulated in the water bodies means the river, lake, ponds. In water bodies में अगर extra amount fertilizer के इकट्ठा हो जाते हैं तो eutrophication होता है. What is eutrophication? Means there is algal bloom. अचानक से जो algae है वो इतने ज्यादा amount में बढ़ जाते हैं कि बाकी के प्लांट्स, बाकी के एनिमल वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं. So that's why whenever we have to use the fertilizer, we have to use in the correct amount. Otherwise, if the extra amount of the fertilizers are added into the soil, it is harmful for the soil and the water bodies also. कि जब भी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो हमें एक निश्चित अमाउंट में यूज करना है, अदरवाइज ज्यादा यूज से मिट्टी को भी नुकसान होता है, वाटर बॉडीज को भी होता है. Now see the difference between the fertilizers and manure. Fertilizer
इज अ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनता है. And manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residue. Cattle dung से, cattle excreta से, human से, plant के जो waste होते हैं उनके decomposition से manure बनता है. A fertilizer is prepared in factories. Fertilizer factories में बनते हैं. But manure can be prepared in the field. But manure कहाँ बनता है? खाद? Into the field, into the compost pit. A fertilizer does not provide any humus to the soil. Fertilizer किसी भी तरह का humus soil को नमी नहीं देता. But manure provide a lot of humus to the soil. लेकिन manure से बहुत सारा humus provide होता है जिससे soil erosion में कमी आती है. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizer जो होते हैं वो rich होते हैं nitrogen, phosphorus and potassium में. Manure is relatively less in plant nutrient. लेकिन मैन्योर जो होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते हैं. सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोइंग. तो आफ्टर द प्लॉइंग, आफ्टर द लेवलिंग एंड मैन्योरिंग, वी हैव टू सो द सीड्स. सोइंग मींस बीज को बोते हैं. The process of putting the seed in the soil is known as sowing. Before sowing, good quality, healthy and good variety seeds are selected. Sowing के बाद बीज डालने से पहले क्या करते हैं? सबसे पहले healthy और अच्छी variety के seeds को उसमें से छांटा जाता है. See, it's a sowing. ये traditional method है जिसमें हाथ से ही बीज को spread करते हैं, फैलाते हैं, broadcast करते हैं. See, these are some seeds. Selection of seed. ये डिफरेंट टाइप के सीड्स हैं. सो सिलेक्शन ऑफ सीड्स फॉर सेपरेटिंग हेल्दियर सीड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ हेल्दी एंड वीक सीड. द सीड आर प्लेस्ड इन वाटर. हेल्दी और अनहेल्दी सीड को अलग करने के लिए सीड को क्या करते हैं? पहले पानी में भिगा देते हैं. हेल्दी सीड्स सिंक एंड वीक और इंसेक्ट ईटन सीड फ्लोट ऑन वाटर. जो हेल्दी सीड होते हैं, जो स्वस्थ बीज होते हैं, वो पानी में नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो वीक होते हैं, जिन्हें इंसेक्ट ने खाया होता है या वो डैमेज्ड होते हैं, वो पानी में ऊपर तैर जाते हैं. So by this method we separate the healthy and the weak seed. Healthy seeds are separated and dried before sowing. Healthy seeds को वहां से अलग किया जाता है और ड्राई करके फिर उसको सोइंग करते हैं, मतलब बीज को फील्ड में डालते हैं या बोते हैं. Now the sowing can be done by. अब सोइंग बहुत सारे जो खेत में बीज डालते हैं वो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा डालते हैं. सम आर ट्रेडिशनल मेथड, सम आर मॉडर्न मेथड. सो फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग. सीड्स आर सोन बाय हैंड और मैनुअली. पहले क्या करते थे? बीज को हाथ से ही स्प्रेड कर देते थे, फैला देते थे. दैट इज ब्रॉडकास्टिंग. तो उसके कुछ नुकसान थे कि हाथ से डालने पे कभी कभी एक जगह ज्यादा बीज इकट्ठा हो जाते थे और फूड उतना ही अवेलेबल है, तो फूड के लिए कंपटीशन होता था. Next is traditional tool. The tool used traditionally for sowing seed has shape like a funnel. तो traditional tool जिसकी मदद से बीज को डालते थे, उनका शेप कैसे होता है? फनल की तरह, कीप की तरह. The seeds are filled into the funnel. इस फनल में, see it's a funnel, इस फनल में बीज भर देते थे and passed through 2 or 3 pipes having sharp end. These end pierce into the soil and place seeds here. और फिर इनकी मदद से इन्हें pierce करते, दबाते और इनकी मदद से बीज को बो दिया जाता था, फील्ड में डाल देते थे. Next is sowing can be done by some other methods also, that is seed drill. Seeds are sown by the seed drill with the help of tractor. See, it's a seed drill. ये देखो seed drill है, पाइप जैसी स्ट्रक्चर है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ही बीज को बोता है. It saves time and labor. तो जब ट्रैक्टर्स की मदद से में सीड ड्रिल लगा के बोते हैं तो जल्दी हो जाता है काम. It save time and labor और मेहनत भी कम लगता है. सीड ड्रिल, इसमें सीड्स हैं, वो एक पर्टिकुलर डिफरेंस के बाद उसे बो देते हैं. नेक्स्ट इज precautions during sowing seed. Now we have to take some precautions. कुछ precautions लेने होते हैं सीड को बोते वक्त. Use good quality, healthy and disease free seed. कि जो सीड हो वो हेल्दी हो, किसी भी तरह से डैमेज ना हो. Next is the seed are sown at a particular depth under the soil. Particular depth means सही गहराई पे. ऐसा ना हो कि सीड इतने ऊपर हो कि हवा चले और बीज उड़ जाए, और ऐसा भी ना हो कि इतने अंदर हो कि वहां तक न्यूट्रिएंट, एयर, सनलाइट पहुंचे ही ना.
तो बीज हमेशा एक पर्टिकुलर डेप्थ पे बोना चाहिए। सीड लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल मे बी कैरीड और डिस्ट्रॉयड बाय द इंसेक्ट and the bird. Seed placed deep into the soil may either fail to germinate or may fail to come out into the air on germination. Okay? कि इतना भी ऊपर ना हो कि जो बीज है उन्हें इंसेक्ट या बर्ड नुकसान पहुंचा सके या वो हवा से उड़ जाए, और इतने भी नीचे ना हो कि उन्हें जर्मिनेशन के लिए वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट ना मिल पाए. So these are some precautions we have to take care. The distance should be proper to avoid overcrowding. जो बीज के दो बीजों के बीच में जो दूरी है वो उचित होनी चाहिए, सही होनी चाहिए. अदरवाइज देयर इज अ ओवरक्राउड एंड दे हैव टू फाइट फॉर द फूड. मींस अगर आपको एक पराठा और चार को एक ही जगह उस पराठे को खाने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा? तो देयर इज अ फाइट फॉर द फूड, दे हैव टू फाइट द कंपटीशन फॉर द सर्वाइवल. तो इसीलिए उन्हें एक निश्चित दूरी पे रखना चाहिए जिससे उन्हें अपने हिस्से का फूड एंड वाटर मिल पाए. Enough water should be there in the soil. और पानी भी सही मात्रा में होना चाहिए. इतना कम ना हो कि सॉइल को ना, सीड को ना मिले, और इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो उसमें सड़ जाए, मर जाए, डूब जाए. Next is irrigation. The process of artificial supplying of water to crop at different intervals is called irrigation. आर्टिफिशियल मेथड से फील्ड में पानी को पहुंचाने के प्रोसेस को, क्रॉप्स तक पानी के पहुंचाने के प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. द टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार सिंचाई करना है, कितनी देर तक करना है, ये हर एक क्रॉप का अलग अलग होता है. किसी क्रॉप को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, किसी को कम की जरूरत होती है. सो अकॉर्डिंग टू देयर नीड वी प्रोवाइड द वाटर टू द सॉइल. सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. हर सीजन के क्रॉप को और हर मिट्टी में जो क्रॉप बोते हैं ये वेरी करता है कि जो एलुवियल सॉइल है या लोमी सॉइल है, उनकी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है. सोर्स ऑफ इरिगेशन, कौन कौन से सोर्स हैं जिससे सिंचाई होती है? दीज आर द वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, कैनल एंड डैम्स. इन सारी मेथड से, इन सारी चीजों की मदद से हम इरिगेशन करते हैं. सो लेट्स लर्न वन बाय वन. मेथड ऑफ इरिगेशन. दीज आर सम मेथड ऑफ इरिगेशन. सी, surface irrigation. In this type of irrigation, the water is lifted from lake. Surface irrigation में जब surface से पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है. From the lake, well, lake में झील से, well से, and canal से, tube well से या canal से, by using following traditional ways like moat, पुले system. पुले means पानी को पुल किया जाता है, निकाला जाता है. चेन पंप, ढेलकी, राहत, लेवर सिस्टम. ढेलकी, राहत भी कुछ कंटेनर्स होते हैं जिनकी मदद से आपने कुएं में देखा होगा कि कंटेनर से पानी को बाहर निकालते हैं. सो बाय दीज सम मेथड वी इरिगेट द क्रॉप्स. हम क्रॉप फील्ड को इरिगेट करते हैं. सी सम मेथड्स आर गिवन हियर. दिस इज स्प्रिंकलर इरिगेशन. दीज आर कैनल सिस्टम. सो लेट्स लर्न वन बाय वन. These methods are cheaper and less efficient. ये cheaper होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन less efficient होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते हैं, बहुत properly irrigation नहीं हो पाता. These methods require cattle and human labor. और इन सारे method में या तो हमें जानवर की मदद लेनी होती है या तो human की मदद लेनी होती है. The lifted water is allowed to run over the field. और जो पानी हम लिफ्ट करते हैं या तो रिवर से उठाते हैं या वेल से लेते हैं, उन्हें फील्ड तक पहुंचाने के लिए क्या करना होता है? फील्ड में ही डालना होता है जिससे वो वहां तक पहुंचते हैं. सरफेस इरिगेशन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फरो एंड बेसिन इरिगेशन. अब सरफेस इरिगेशन के भी टू मेथड हैं, दैट इज फरो इरिगेशन एंड बेसिन इरिगेशन. सो लेट्स लर्न अबाउट द फरो इरिगेशन. द वाटर इज अलाउड टू रन थ्रू फरो बिटवीन द रिजेस. सी द फरोज आर प्रिपेयर्ड. ये क्रॉप के बीच में फरोज बने हुए हैं, ऐसे जगह बनी हुई है, फरो लाइक इरिगेशन, जिसमें पानी को डाला जाता है, दैट इज फरो इरिगेशन. नेक्स्ट इज बेसिन इरिगेशन. द फील्ड इज फ्लडेड. ऐसी इरिगेशन जिसमें पूरी फील्ड को पानी में से भर दिया जाता है. फ्लडेड विथ वाटर बाय मेकिंग बंड्स ऑल अराउंड इट. और किनारे बॉन्ड्स बांधे जैसा बना देते हैं जिससे ये पानी बह के कहीं और ना जाए, पूरे वक्त इस फील्ड में पानी रुका हो.
फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन द इरिगेशन ऑफ पैडी, आपने धान की खेत अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि पानी में पूरी तरह से वो डूबे होते हैं बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए ये पानी स्प्रिंकल हो रहा है, यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, फव्वारे की तरह जा रहा है। इन दिस सिस्टम द परपेंडिकुलर पाइप्स, परपेंडिकुलर देखो एक इधर एक इधर है, the perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to main pipeline at regular interval। ऐसा नहीं है लगातार है, कुछ कुछ दूरी पे ये पाइपलाइंस हैं जिससे कि पानी स्प्रिंकल होता है, फैलता है। It spread water uniformly over crop plant and field, और इसकी मदद से यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं है कि पाइप हमने डाल दिया एक जगह खेत में पानी इकट्ठा हो जा रहा है और एक जगह पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी प्रॉपरली पूरी खेत में स्प्रेड हो रहा है जिससे हर एक को प्रॉपर अमाउंट में पानी अवेलेबल हो पा रहा है। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल एंड अनइवन लैंड, जो इवन लैंड नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं, या जो सैंडी सॉइल होता है वहां के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट होता है। It is an efficient system in the canal irrigated area of Haryana and Rajasthan। हरियाणा और राजस्थान के लिए बहुत efficient है क्योंकि वहां पे पानी की जरूरत ज्यादा होती है। Next is that is drip system और trickle irrigation। Drip means बूंद बूंद, देखो इस पाइप में छोटी सी जगह है जिससे पानी बूंद बूंद निकल रहा है। It involves the use of pipe fitted with small tubes called emitters। The pipes are laid over or under the soil and emitters release water drop by drop around the roots of the plant। ये जड़ में सीधे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है जिससे कि पानी की रिक्वायरमेंट लगातार पूरी होती रहती है और पानी वेस्ट भी नहीं होता है। In this method water is not wasted at all, water बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। The method is This method is a boon in poor water region, जहाँ पे पानी की कमी है, ज्यादा पानी स्प्रिंकल नहीं कर सकते या इकट्ठा करके नहीं डाल सकते, वहां के लिए क्या है, दिस मेथड इज अ बून। बून मीन्स वरदान है कि कम पानी से भी पूरी खेत की सिंचाई हो जाती है। दिस इज द बेस्ट इरिगेशन टेक्निक फॉर फ्रूट क्रॉप्स, गार्डन एंड ट्रीज। फ्रूट क्रॉप्स के लिए जहाँ फ्रूट उगाए जाते हैं या जहाँ गार्डन है या पेड़ है, उन जगहों के लिए ये मेथड बेस्ट होता है। That is known as the drip system or the drip irrigation, जिसमें बूंद बूंद पानी के द्वारा इरिगेशन होता है। So the next is other irrigation system in India। Some other irrigation system is also present, that is canal system। Canals receive, canals एक कैनल जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है पतली सी। कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम द रिवर्स, और ये पानी इनको कहाँ से मिलता है, नदियों से। द मेन कैनाल आर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस which are further divided into distributaries to cover maximum area for irrigation। और ये कैनाल, ये जो कैनाल पतली पतली मेड़ जैसी रचना है, वो फिर आगे जाके बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती है और पूरे खेत में मैक्सिमम एरिया तक पानी पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट इज टैंक्स। टैंक आर वाटर स्टोरेज रिजर्वायर which store the run of water of small कैचमेंट एरिया। टैंक्स आर वाटर स्टोरेज रिजर्वायर। टैंक आपने देखा है जैसे पानी का टैंक होता है, रिजर्वायर होते हैं जहाँ पानी को स्टोर करते हैं और फिर यहीं से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। Some other irrigation system is river valley system। Due to heavy rainfall, many river valley are found in western Chants and Karnataka। जहाँ बारिश ज्यादा होती है जैसे वेस्टर्न चैन और कर्नाटका में रिवर वैली सिस्टम से पानी खेतों की सिंचाई की जाती है। These result in higher runoff and discharge flow in the rivers। To prevent this, coffee, rubber, coconut are cultivated on the slopes of these valley and single rice crop is grown at the bottom। और जिसकी मदद से कॉफी, रबर, कोकोनट और राइस क्रॉप की आसानी से सिंचाई हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ द रिवर वैली, जहाँ बारिश ज्यादा होता है तो पानी बह करके वैलीज में कलेक्ट हो जाती है। रिवर लिफ्ट सिस्टम। वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर यूजिंग पंप। जब डायरेक्टली पानी रिवर से निकाला जाता है इरिगेशन के लिए, सो दैट इज नोन एज द रिवर लिफ्ट सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। इट मेंटेन्स द मॉइस्चर ऑफ सॉइल। सिंचाई करने से क्या होता है, पानी में जो खेतों में जो मॉइस्चर है, नमी है, वो बना रहता है और सीड ड्राई होके सड़ते नहीं है। इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, और सीड्स आसानी से जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं। इट हेल्प्स इन सप्लाई ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो उन्हें मिल जाता है। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। और न्यूट्रिएंट्स हर
वाटर के सिंचाई से, पानी की सिंचाई से, पानी की मदद से हर एक पार्ट में पहुंचता है. इट हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ प्लांट, और प्लांट्स का ग्रोथ भी प्रॉपरली होता है. So it's enough for this lecture, and rest of the topics we have covered, that is plowing, leveling, manuring, and sowing of seed, irrigation. Next के बाकी step हम next lecture में पढ़ेंगे. तब तक के लिए keep learning, happy learning. We'll meet soon in the next lecture. Thank you.